Okay, now let's see the next reaction for the preparation of your alkenes from alcohols. Right. So this is your reaction number D. And we are preparing alkenes from your alcohols. So name of this reaction is dehydration reaction. Okay. Name of reaction is what? Name of reaction is dehydration reaction. Dehydration, all of you know. Dehydration means loss of water. Correct. Dehydration means loss of water. Right. So for this reaction, I'm also going to specify the temperature range. Right. So temperature for this reaction should be greater than or equal to 170 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो एक तो टेम्परेचर 170 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. Why I am telling? Because you are preparing alkene from alcohols, correct? And same reaction you will carry out somewhere else. You will get different product. Just like you will get ether. If you reduce the temperature, you will get ether. That's why temperature is very necessary. Okay. Now let's have a look at the reaction. Let's take alcohol. Okay. ये आपका अल्कोहल है ना. अल्कोहल का नाम क्या है? इथेनॉल. ठीक है. You have taken this ethanol, and now what you will do? You put an acid. Okay. So very simple. You need to remove this H and OH. Okay. तो क्या करना है? सिंपल रिएक्शन में H को और OH को निकालना है ना. So what acid we are going to put? We are going to put concentrated H2SO4, or we can also put H plus, or we can also write this as H plus, right? Or we can also say concentrated H3PO4. It's also a very nice option, correct? So all three we can use. ठीक है. तो कभी-कभी आपके जो रिएक्शन है उसमें रिएजेंट के तौर पे H2SO4 को H+ भी लिख सकते हैं, H3PO4 को H+ भी लिख सकते हैं. So all three are right working. You can use any three for your reaction to happen. Okay. And the reaction is simple. What you'll get product is this H and OH gets removed, and you get product as HCH double bond C, H and H plus you will get H2O. Okay. So reaction is very simple, So when we say dehydration, loss of water, चलो पानी को निकाल लिया हमने, H और OH को निकाल लिया, आपका alkene बन गया है, right? But most essential part which is asked in this is about the mechanism, तो सबसे important part जिसमें पूछा था वो किसके बारे में? Is the mechanism of the reaction. Understanding point, So mechanism is very necessary, right? Especially questions are asked based on mechanism. So listen to this very attentively, and pay attention, right? So what I will do, I'll take one more alcohol. This time I'll take a bigger alcohol so that all concepts get covered into this. Let's take 2-butanol. If I take this CH3, CH, OH, CH2, CH3. Okay. And let's say if I add here, H plus. Okay. So make it a reversible reaction. Reaction is going to be reversible. If I add here H plus, considering that all three could be present. Okay. Now what I do, H plus is there. ठीक है. अभी H plus है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा. ठीक है. पॉजिटिव है तो कौन अटैक करेगा उसके ऊपर? नेगेटिव वाला पार्ट. नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे है? यहाँ पर तो कुछ नेगेटिव नहीं है, right? But oxygen is electronegative and oxygen has a lone pair, right? And we also know that lone pair acting electronegative compounds who have lone pair, they can also act as Lewis base. So if I heat it and if I have this lone pair, क्या होगा? This lone pair will go and directly attack on the H plus, correct? Lone pair will go and directly attack on your H plus, right? Now next step. Now H will get attached to this, so you get CH3,
CH2 CH3 and here you get OH2 प्लस, ठीक है। अब प्लस साइन किसके ऊपर आ गया है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया है? प्लस साइन। ध्यान से देखो, प्लस साइन किसके ऊपर है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना हाइड्रोजन को, ठीक है। पहले तो ये स्टेबल था, बैलेंस था, राइट। अब क्या कर दिया? ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, राइट। तो क्या बन गया आपका? OH2 प्लस, राइट। एंड दिस रिएक्शन, दिस स्टेप, है ना, H plus attack, it happens very fast, so it's a fast step, okay। अब अगले स्टेप में देखो क्या हो रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होगा इसमें? ध्यान से देखो, ये जो OH2 प्लस है ना, इट इज हाईली अनस्टेबल। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, OH2 प्लस क्या है? इट्स हाईली unstable, and because it's highly unstable, right, it wants to get removed, right? So what this oxygen does, that oxygen being electronegative, it has already pulled some electron from the carbon, कार्बन से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करके रखे, है ना। और एंड इट्स अनस्टेबल, तो उसको स्टेबल बनना तो क्या करेगा? ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन, ठीक है। So this step also being reversible, your next step, next product is formed is CH3 CH plus CH2 CH3 plus क्या बन गया आपका? Plus formed is your water, okay, plus formed is your water. I hope this is clear, right? So OH2 plus is removed and formed is your water with the carbocation on this carbon, है ना। So next step is, अब देखो क्या करना था हमको? वाटर को निकालना था। वाटर से अभी क्या निकल गया है? OH तो निकल गया है। अब बस क्या निकालना बाकी है? What else is remaining to remove? Is your H. OH निकल गया है, अब बचा क्या है निकालना? H निकालना बाकी है। तो H को कैसे निकालेंगे? Let's see. CH3 CH plus CH2 CH3, ठीक है। अब H को निकालना है। अभी कार्बोकेटायन से तो H नहीं निकाल सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म करना है ना। तो डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इस कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन में से कहीं से तो H निकालना है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को मैं कैसे लिख देता हूं? तो H कहां से निकलेगा? एक तो इस कार्बन से निकलेगा, नहीं तो इस वाले कार्बन से निकलेगा, करेक्ट। H एक तो ये कार्बन से निकलेगा, नहीं तो ये वाले कार्बन से निकलेगा, राइट। क्योंकि इसके एडजेसेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड एक तो यहां बनेगा, नहीं तो यहां बनेगा, राइट। तो इसी को मैं कैसे लिख देता हूं? देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर H लगा दिया और यहाँ पर भी H लगा दिया, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया ये वाटर, ये वाला जो पानी का मॉलिक्यूल निकला है इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, ओके। तो ध्यान से देखो क्या हो सकता है। ये वाटर जो है एक तो इस वाले H पे अटैक कर सकता है या फिर इस वाले H पे अटैक कर सकता है, ठीक है। If it attacks on this H, double bond will form here, and if it attacks on this H, double bond will form here, right? So we are seeing both the possibilities, so double bond can be formed either here or here, right? So what will happen next? So after this attack, right, so both the possibilities we'll see, आपका ये बन सकता है CH2 double bond CH2 CH3 plus, if double bond gets formed here, what will be the product? CH3 CH double bond CH and CH3, okay. I hope this is clear, right? So when this water molecule का lone pair is attacking on this H, double bond is formed here, and when this lone pair attack on this H, double bond can be formed here, So simultaneously you cannot form double bond, एक ही कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड नहीं बन सकते ऐसा, राइट। डबल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड ऑन आइदर वन ऑफ द टू, ओके। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अरे दोनों कैसे बन सकते हैं? दोनों में से कोई एक ही बनना चाहिए,
दोनों कैसे बनाएंगे, राइट? सो देयर इज वन क्राइटेरिया टू फाइंड आउट कि विच वन इज स्टेबल, है ना? दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल है वो बनेगा, है ना? अनस्टेबल वाला बनने वाला नहीं है, राइट? तो कौन सा स्टेबल है, लेट्स फाइंड आउट। सो ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट हमने किया था जीओसी में. इफ यू रिमेंबर, वी हैड डन कंसेप्ट कॉल्ड एज hybridization. Okay, we had done concept called as hybridization, where we had seen that, you know, how to check the stability of double bond, right? How to check the stability of double bond. और वहां पर हमने चेक कैसे किया था, हमने अल्फा एच निकाले थे, और अल्फा एच से हमने देखा था कि जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा एच है वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल रहेगा, राइट? क्योंकि उसको हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिलने वाला है, राइट? So now let's calculate alpha H. So if this is the carbon, ना, इसके adjacent carbon देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के adjacent कार्बन पे जो H होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा H, ठीक है? तो यहाँ पर कितने अल्फा H दिख रहे हैं, दो. कितने अल्फा H दिख रहे हैं, दो, राइट? बट यहाँ पर देखो ये C डबल बॉन्ड C है, इसके लेफ्ट में भी कार्बन है और इसके लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट? सिंगल बॉन्डेड कार्बन, है ना? एंड बोथ आर हैविंग 3 हाइड्रोजन्स, राइट? तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे जो H है उसको बोलते हैं अल्फा H, राइट? यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 6 alpha H, right? And we know that more is the number of alpha H, more would be the stability. Now, more is the number of alpha H, more would be its stability, right? So out of these two, which is more stable now? Exactly, no? The one having 6 alpha H, right? So the one which is more stable, I'll write it as what? I will write it as major, okay? And the one which is less stable, I'll call it as what? Minor, okay? तो जो ज्यादा स्टेबल है उसको हमने बोल दिया मेजर, है ना? और जो कम स्टेबल उसको बोल दिया हमने क्या, माइनर, ओके? I hope it is clear. Everyone understood? Any doubts in this? Anyone is having? Yes. Is anyone having any doubt in understanding this concept? Okay, good. So write it down fast. Then I'll make you write the rule on which it's based. Okay. So I'll rub this, and all of you can write down the statement. Okay. Write down the statement. It's either called as ZSEF, okay? It's either called as ZSEF or ZSEF rule, ठीक है? ZSEF और ZSEF दोनों एक ही है, ठीक है? So what is statement? Statement is that in elimination reaction, okay? Okay, in elimination reaction, that alkane, in elimination reaction, that alkane, right? In elimination reaction, that alkane is formed as the major products. That alkane is formed as the major product. Which alkane? Which has
greater number of alkyl groups as the major products which has greater number of alkyl groups, ना, just like we saw, जिसके पास सबसे ज्यादा alkyl groups है वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, stable, which has greater number of alkyl groups substituted on it. Substituted on it. Okay. Now tell me, I'll give you a problem. Okay. This is your alcohol. And if I add here H plus, ठीक है, ये आपका अल्कोहल है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया मैंने H प्लस. आपको बताना है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, करो फटाफट. और एक प्रॉब्लम देता हूँ, CH3 ठीक है, और एक प्रॉब्लम दे दिया आपको. तो ये दो प्रॉब्लम आपको करना है फटाफट. सिंपल है, डिहाइड्रेशन करना है, H और OH को निकालना है. All of you just now saw the mechanism. तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है. You do mechanism only when the mechanism is asked to be done, right? Otherwise don't do mechanism. Okay. नहीं तो मैकेनिज्म मत करना, ठीक है. करो. पहला वाला आ गया किसी को? पहला वाला तो वेरी सिंपल, OH निकालना और H निकालना है. कैसे तो निकालो, कैसे भी निकालो, जिस कार्बन पे OH लगा है वहां से निकालो. वेरी सिंपल. Anyone got first? Yes, very good, है ना. तो कार्बन जिसके ऊपर OH लगा है और उसके एडजेसेंट कार्बन से H निकालना है, राइट. यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से कैसे भी निकालो, सारे तीनों कार्बन क्या है, सेम ही है. तीनों कार्बन कैसे सेम ही है, राइट. क्या करो, CH3 मान लो इसमें से हमने निकाल लिया, ठीक है. क्या आएगा आपके पास, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस लिख देना यहाँ पर H2, राइट. प्लस लिख देना यहाँ पर H2, ठीक है. ये वाला है किसी को? ये थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें. पहला स्टेप तो सबने कर दिया होगा. क्या है पहला स्टेप? But it's such a problem, directly solving will be difficult. तो जब भी आपको लगेगा कि डायरेक्ट सॉल्विंग से नहीं जम रहा है तो क्या करो, थोड़ा मैकेनिज्म करके देखो, है ना, क्या होगा. लेट्स सी, ये लोन पेयर को इसने क्या कर दिया, H पे अटैक कर दिया, तो हमको पता है, ठीक है. इसका बन जाएगा OH2 प्लस और OH2 प्लस बन के बाहर आ जाता है, राइट. और इसके ऊपर डायरेक्टली कार्बोकेटाइन हो जाता है ना. सो आई राइट डायरेक्टली नाउ, है ना. ऑल ऑफ यू नो द फर्स्ट टू स्टेप्स व्हिच यू हैव रिसेंटली डन. तो OH2 प्लस बन गया, OH2 प्लस बाहर निकल गया, क्या आएगा इसके ऊपर, कार्बोकेटाइन आ गया, ठीक है. क्या है आपके पास, CH3 CH CH3 CH प्लस एंड देन CH3, ठीक है. समझे मेरी बात? अब यहां पर जो वाटर निकला है बाहर, है ना, प्लस वाटर. ओके, तो क्या हो गया होगा, बहुत लोगों ने, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसकी ये दो एडजेसेंट कार्बन है ना. तो बहुत ही लोगों ने क्या किया होगा,
एक तो इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन पे अटैक करके यहाँ नहीं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया होगा। आई एम क्वाइट श्योर ऑलरेडी वी हैव डन दैट। यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर बना दिया है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कंसेप्ट लगाना है। मैंने आपको बताया था कि which carbocation is more stable? The carbocation which is 3 degrees is the most stable, right? And this carbocation is which? This carbocation is your 2-degree carbocation because 2 carbons are attached. You know? And which is more stable? More stable is your 3-degree carbocation, right? So as soon as this carbocation is formed, what it does is, it looks on either side. दोनों जगह दिखता है। लेफ्ट में दिखता है तो देखेगा, लेफ्ट में देखेगा, राइट में देखेगा, है ना। और क्या देखेगा? लेफ्ट में देख रहा है, राइट में देख रहा है, क्या देखने वाला है? He is searching for an opportunity to become more stable, right? He is searching for an opportunity to become more stable, है ना। जैसे कोई बस में चढ़ जाता है ना, वो तुरंत जाके क्या देखता है ना? सीट देखता है, यहाँ देख, वहां पर, है ना। कौन सा सीट देखता है? विंडो वाला सीट, राइट? तो आराम से बैठेंगे वहां पर, है ना। तो ये भी क्या देखता है? जैसे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है लेफ्ट और राइट देखता है। यहाँ पर देखा, क्या देखा? 1 डिग्री। यहाँ पर देखा, अरे 3 डिग्री है, 3 डिग्री बनने का चांस है, राइट? So as soon as it sees what happens, यहाँ पर जो H है, राइट, क्या हो जाता है इसका? This H gets shifted on this carbon, right? This H gets shifted on this carbon, और एक कार्बोकेटायन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। कैसा बन गया हमारा? इसको बोलते हैं हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या बन गया? CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब बन गया ज्यादा स्टेबल, है ना। यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया आपका 3 डिग्री, राइट। नाउ इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब क्या करो, इसको ऐसे लिख दो। अभी ये 2 कर दिया हमने, ये बंद कर दिया। यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब सिंपल, यहाँ पर वाटर से अटैक कर दो दोनों साइड। यहाँ पर नहीं करेगा, कहाँ करेगा? दोनों H पे करेगा, ठीक है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज को दिखेगा। यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है, राइट। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है और यहाँ पर भी बन सकता है ना। तो क्या आ गया हमारे दोनों पॉसिबिलिटीज, राइट? बोथ द पॉसिबिलिटीज which come now, either this one CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 CH2 CH3, करेक्ट। इसमें हमको दिख रहा है 3 और 2 5 अल्फा H है, ठीक है। 5 अल्फा H दिख रहे हैं ना। प्लस what can be formed is CH3 CH3 double bond CH2 and CH3, राइट। इसमें कितने अल्फा H दिख रहे हैं आपको? 3 3 and 3, टोटल 9 अल्फा H, राइट। So this is your final product which is being formed, okay। तो ये एक और ये एक, दोनों में से ज्यादा कौन सा स्टेबल है? जिसके पास ज्यादा अल्फा H है वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। So one having 9 alpha H is more stable than your 5 alpha H, right? This is called as what? Your dehydration reaction involving the hydride shift. Okay. So is it clear? Anyone has any doubt in this concept? Okay. So thank you very much.